Today we are starting dissolution. We have completed all the chapters of this partnership: fundamentals, change in profit sharing ratio, admission, retirement, death, and now we are on dissolution of a partnership firm. Students, before starting any chapter, we should understand its meaning. So, what is the meaning of dissolution? The meaning of dissolution is to wind up something, किसी चीज को बंद करना. So here we are talking about the firm, partnership firm के बारे में बात कर रहे हैं. So we'll learn what is the procedure to dissolve the partnership, right? So here the important thing is to understand the difference between partnership, dissolution of partnership, or dissolution of partnership firm. These two terms are different. Okay. So this is dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. What is the difference between these two? Dissolution of partnership. When two or more partners, they are working, right? दे आर इन पार्टनरशिप, द रिलेशन इज ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, तो वो आपस किसी का एडमिशन होता है तो आपकी जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाएगी एंड न्यू पार्टनरशिप विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. ऐसे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो इन ऑल दीज सिचुएशंस योर पार्टनरशिप, द प्रेजेंट पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड, राइट? एक नई पार्टनरशिप आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, नई पार्टनरशिप फर्म आपकी क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स थे, सपोज these were A, B and C, these three partners were there. अब इनमें कोई भी रिलेशन होता है, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, या एक D नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या C छोड़ के जा रहा है, B की डेथ हो रही है, एनी ऑफ द सिचुएशन अराइजेस, राइट? या ये किसी दूसरी फर्म के साथ अमलगमेट हो रहे हैं. ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप का जो रिलेशन है इनके बीच में वो खत्म हो जाएगा एंड द न्यू फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. ऑलराइट, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. फर्म का मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स थे यहाँ पे, either there were 2 partners, 5 partners or 10 partners, okay, the whole firm will be dissolved. यहाँ पे पूरे का पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा. ऑलराइट, बिजनेस बंद हो जाएगा क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, आपकी फर्म ही बंद हो रही है. वहां पे पार्टनरशिप के रिलेशन का डिसोल्यूशन था, यहाँ पे पूरी फर्म बंद हो जाएगी. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि पूरी की पूरी आपकी फर्म खत्म हो रही है, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है. ऑलराइट, सो होप द मीनिंग इज क्लियर. Before starting any topic, you should be clear with the meaning of that chapter. All right. So, dissolution of partnership. What you are going to do in what situation? जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, that is given here. Okay. किन conditions में dissolution of partnership होता है? In case of change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement of a partner, expulsion of a partner, death of a partner, या insolvency of a partner. All right. And in case of expiry of the period of partnership, it is if it is like आपने time period उसके लिए decide किया है. ठीक है. And dissolution of partnership firm, this I have told you. All right. So there are the different situations. In different situations, there can be dissolution of the firm. It can be by mutual agreement, compulsory dissolution. It's a theoretical portion. We'll study some other day. Today we'll do the practical. And on happening of an event and then by notice. तो ये सारे events अगर होते हैं तो your partnership firm can be dissolved. ये तो था आपका without the intervention of the court. कोर्ट का कोई interference नहीं होता तब dissolution होता है, right? And by order of the court. कोर्ट का order हो जाता है तो ये situations हैं जहाँ पे compulsory आपको अपनी firm dissolve करनी पड़ती है. All right? So, in brief, let's discuss these differences once again in a systematic way. It refers to a change in the existing agreement between partners. The firm continues its business. The main difference between the dissolution of partnership and firm is what? Here, the business will be continuing. क्योंकि
पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई है। हो सकता है ए और बी दो पार्टनर थे, राइट? बी ने बिजनेस छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया, तो ए इसको एज अ सोल प्रोप्राइटर कंटिन्यू कर रहा है। तो पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन हो गया, बट फर्म इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट? और यहाँ पे इट रेफर्स टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस, पूरी तरह बंद हो जाएगा। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस द सेम थिंग, हियर द बिजनेस विल बी कंटिन्यूइंग, हियर दिस विल कम टू एन एंड। एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनका आपस का चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, बिकॉज फर्म ही नहीं है, पार्टनर्स ही उसमें नहीं होंगे, तो उनका इकोनॉमिक रिलेशन एग्जिस्ट नहीं रह सकता। ओके, एंड चेंज क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? So books of account need not be closed. There'll be some changes. Okay, we have to do some adjustments in the books of account here, but books will be continuing. All right, here the closure of the books will be taking place. यहाँ पे सभी जो books हैं वो बंद हो जाएंगी. Settlement of assets and liability. So assets are revalued and liabilities reassessed, and gain or loss will be finding out, and that will be distributed between the partners in the old profit sharing ratio, as we have discussed in admission, change in profit sharing ratio, retirement and death, right? तो वहां पे हमने ये सारा किया था कि reassessment, settlement of assets and liability we did. Okay, and यहाँ पे है कि असेट्स और लायबिलिटी का क्या करें। आप सोचिए जरा कि कोई चीज हम खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से, तो असेट्स और लायबिलिटी का क्या करेंगे? बेच देंगे। किसको बेचेंगे? असेट्स को। विल सेल आउट द असेट्स एंड विल पे ऑफ द लायबिलिटीज। असेट्स को हम बेच देंगे एंड लायबिलिटीज को पे करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, क्या इफेक्ट होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट नेसेसरली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने से इट्स नॉट नेसेसरी दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विल बी टेकिंग प्लेस। जरूरी नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो, क्योंकि फर्म तो चल रही है, ठीक है ना? 5 पार्टनर थे, 2 चले गए, 3 है तो दे आर कंटिन्यूइंग द फर्म एज अ पार्टनरशिप। 2 थे, 1 चला गया, स्टिल द फर्म इज गोइंग ऑन एंड एज अ सोल प्रोप्राइटर इट इज वर्किंग फाइन। एंड यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। यहाँ पे आपका फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो आप मान के चलिए फर्म विल कम टू एन एंड। डेफिनेटली फर्म तो बंद हो ही जाएगी, है ना? पार्टनरशिप बंद हो ही जाएगी। फर्म का जब क्लोजर है तो पार्टनरशिप का रिलेशन तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली दिस विल कम टू एन एंड। नेक्स्ट वन इज कोर्ट्स इंटरवेंशन। There is no intervention by the court since the partnership is dissolved by mutual consent. Mutual consent से होता है तो there is no need of that. Okay, and a firm can be dissolved either without the intervention of the court or by order of the court. इन दोनों situations में हो सकता है, as there is given in the theory part. All right. Now, settlement of accounts on dissolution. What to do, what not to do. फाइनली वी विल डिसॉल्व द बिजनेस। तो उसमें आप किस तरह से क्या प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर डिसोल्यूशन अकाउंट, and certain, let me tell you one more thing before starting with the dissolution account. Payment of firms debts and private debt. Payment of firms debt and private debt, these two things are there. फर्म के डेट, एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग कि फर्म के डेट और ये है प्राइवेट डेट, ठीक है? तो इनको क्या प्रायोरिटी पे रखेंगे, किस तरह से इनका पेमेंट करेंगे? यहाँ फर्म के डेट यानी कि फर्म ने किसी से उधार लिया था, एंड प्राइवेट डेट का मतलब है कि आपके अपने जो पर्सनल डेट्स हैं, राइट? Here the simple logic is there. The differences are given here, but let me tell you its meaning first. कि आप हैं और आपके एक फ्रेंड हैं, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे, द होल टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। ऑलराइट, आप हैं और आपके फ्रेंड हैं, ठीक है? तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, ओके, आपने कुछ लोन लिया हुआ है और आपके फ्रेंड ने भी लोन ले रखा है। ऑलराइट, आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, आपके फ्रेंड की भी हो सकती है। तो आपकी प्रॉपर्टी से पहले आप अपना लोन चुकाएंगे या अपने फ्रेंड का चुकाएंगे? जस्ट आस्क योरसेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर।
ओके तो सबसे पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी से अपना लोन चुकाऊंगी एंड आफ्टर दैट इफ समथिंग इज रिमेन्ड विद मी देन आई विल हेल्प माय फ्रेंड राइट इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर फर्म की प्रॉपर्टी है राइट और फर्म के डेट है तो पहले फर्म अपनी प्रॉपर्टी से अपने डेट को चुकाएगी अपने ऋणों को चुकाएगी एंड उसके बाद वो पार्टनर के लिए कुछ कर सकती है एंड इन द सेम वे पार्टनर की प्रॉपर्टी पहले पार्टनर के डेट्स को चुकाने के लिए उसके ऋण को चुकाने के लिए जो उधार लिया है उसको चुकाने में काम आएगी एंड उसके बाद वो फर्म की कुछ हेल्प कर पाएगा ओके आई होप द मीनिंग इज क्लियर कि पार्टनर की प्रॉपर्टी पहले उसके लोन्स वगैरह को पे ऑफ करने में काम आएगी एंड उसके बाद जो बचेगा उसके पास देन ही विल हेल्प द फर्म ओके सो लेट्स सी द डिफरेंस firm's debt and here it is given private debt तो firm's meaning क्या है firm's debt refers to the debt payable by the firm to outsiders right तो firm के debt क्या है जो बाहर वालों को पे करना है payable by the firm to outsiders okay and private debt का मतलब है private debt refer to the debts payable by a partner in his personal capacity यानी कि personally उसने बाहर वालों से कुछ लिया था तो वो पे करेगा तो वो उसका personal debt हो गया ठीक है Now, who is liable? For firm's debt, all partners are liable jointly and severally. See, that's very clear कि firm का debt है तो firm liable होगी ना and firm में कौन आता है all the partners are a part of the firm so all the partners will be liable to pay jointly or severally means separately they have to pay either separately or jointly they are responsible jointly and severally as well सभी मिलके उसको पे करेंगे and for private debt only the concerned partner is liable personally that's very very clear see the things are very much related to our normal life कि आपने उधार लिया है तो आप रिस्पॉन्सिबल है ना आपके फ्रेंड थोड़ा ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे फर्म है तो फर्म में तो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे राइट और यहाँ पे सिर्फ आपने लिया है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी कि फर्म की प्रॉपर्टी इसमें कैसे अप्लाई होगी मैंने आपको स्टोरी के थ्रू बता ही दिया है लेट्स रीड इट आउट फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स कि फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेट को पे करने के लिए लायबल है उसके बाद कुछ बचेगा तो फिर बाद में देखेंगे एंड हियर इट्स टेलिंग दैट कंसर्न पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स तो यहाँ पे प्राइवेट डेट के लिए कहा है कि कंसर्न पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट इसी के कंसर्न में बोला है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी कि कुछ अगर एक्स्ट्रा बचता है अपनी फर्म की लायबिलिटी वगैरह पे करने के बाद तो टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट को वो पे कर पाएगा फर्म की जो भी लायबिलिटी है उस अपना हिस्सा पे कर देगा देन ही कैन पे हिज पर्सनल डेट्स ऑल्सो राइट ये था एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि फर्म की प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा है ठीक है उससे पहले फर्म के डेट पे करने हैं और उसके बाद कुछ बचता है तो वो अपना पर्सनल पे कर सकता है यहाँ दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपके पास तो क्या करेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ द प्राइवेट डेट पहले मैंने ये पढ़ा है क्योंकि आपको समझाया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले आप प्राइवेट डेट्स पे करेंगे बचेगा तो फर्म का कुछ पे करेंगे तो हियर इट इज टेलिंग सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर द प्राइवेट डेट कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्राइवेट डेट को पे करने के बाद कुछ सरप्लस बचता है ठीक है तो कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट तो हम फर्म के डेट को पे कर पाएंगे ओके ऑलराइट होप इट इज क्लियर टू यू ओके नाउ फाइनली अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो यहाँ पे आप क्या क्या अकाउंट बनाते हैं देखिए change in profit sharing ratio, admission, retirement, and death. How many accounts were you preparing? We were making revaluation account. Second, we have done partners capital account, right? And we have prepared balance sheet. All right.
right? These three main accounts were there. In case of retirement, we used to prepare partners loan account also. Hope everyone knows about that. Now dissolution में हमें क्या क्या बनाना है? डिसोल्यूशन में सबसे मेन राइट जो अकाउंट है हमारा वो है रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर लोन बाय फर्म to partner and loan by partner to firm. Okay, and fourth one is partners capital account, and finally we prepare cash or bank account. So first of all, you should, as I generally say, कि you should understand the meaning first. Okay, अगर आपको meaning clear हो जाता है तो आधी problem आपकी वहीं solve हो जाएगी. And this realization account is containing 50% of the whole chapter. ये सारी चीज़ें बहुत छोटी मोटी रह जाएंगी. 50% या इससे ज़्यादा परसेंटेज भी हम कह सकते हैं वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंटेन करता है. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रियलाइजेशन अकाउंट? दिस रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूल करना, वसूली करना, वसूली खाता बोलते हैं इसको हिंदी में. What we are going to do in this chapter, जब आपकी फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या करेंगे? यू आर नॉट गोइंग टू रीवैल्यू दैट. आप इस टाइम उनको रीवैल्यू नहीं कर रहे हैं, इस टाइम हम उनको बेच रहे हैं. डेफिनेटली सम वैल्यू विल बी देयर, ऑफ कोर्स कोई ना कोई वैल्यू तो लगेगी उनकी, कम या ज्यादा, दैट वी विल स्टडी हियर. लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अकाउंट में बेच रहे हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट. दीज आर कंप्लीटली पोल्स अपार्ट, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. तो यहाँ पे मैं डिफरेंस क्लियर कर दूं. रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप जो अकाउंट बनाते थे, राइट, तो यहाँ डेबिट में आप क्या लेते थे? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो भी है, कि आपको आइदर दैट इज बिकॉज ऑफ असेट्स और लाइबिलिटी. अगर आपको लॉस हो रहा था किसी भी रीजन से तो वो डेबिट में ले रहे थे, और गेन या फायदा हो रहा था तो वो आप क्रेडिट में ले रहे थे. एंड दिस वाज योर रिवैल्यूएशन, राइट. आइदर यू आर गेटिंग द प्रॉफिट और लॉस, वो हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे थे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं रियलाइजेशन में? रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे. This is your debit side amount, credit side particulars. ठीक है. All these things I'll be explaining when the right time will come. Loan by firm and loan by partner. ठीक है, and partners capital account हमें इसलिए बनाना है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जो फाइनली लेन देन है, पार्टनर को कितना पे करना है, ठीक है, उससे क्या हमें लेना है, क्या उसको देना है. ओके, तो वो सारा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीखेंगे. एंड फाइनली वी प्रिपेयर कैश या बैंक अकाउंट एट द एंड, राइट, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे एक चीज ये बता दूं, आपके जो एक्सटर्नल आते हैं जनरली दे आस्क द क्वेश्चन कि व्हाई डोंट यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. आप इस चैप्टर में बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते हैं? भाई जब बिजनेस ही नहीं है आपकी, अच्छा बैलेंस शीट में होता क्या है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती हैं, असेट्स होता है. असेट्स आपने बेच दी है, लाइबिलिटी आपने पे कर दी है, तो बैलेंस शीट में कुछ बचा ही नहीं है. एक रीजन. दूसरा, आपका बिजनेस ही खत्म हो गया है, तो किस चीज की बैलेंस शीट बनेगी? सो बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन दिस चैप्टर. इंस्टेड वी प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट. ओके, एंड यहाँ पे आपका कैश एंड बैंक अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट है वो मैच करेगा. दैट विल बी इक्वल. दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज परफेक्ट. ठीक है, तो ये वी विल बी स्टडिंग एट राइट प्लेस. ओके, चलिए लेट्स लर्न हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल. ठीक है,
2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कॉन्सेप्ट्स आई होप इस लेवल तक आपके जब आप लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं पार्टनरशिप के तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कहीं डाउट होगा तो भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? तो डेबिट में आपको क्या लेना है? और अच्छा, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन चाहिए है, हर आंसर के लिए आपको कोई क्वेश्चन चाहिए होता है, तो वी नीड बैलेंस शीट, राइट, टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। सो यू जस्ट कॉपी डाउन ऑल द असेट्स हियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की जो असेट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपका दे रखा है डेटर्स दे रखा है, आई कैन राइट ऑल असेट्स, है ना, बट एक्सेप्ट अ फ्यू वन, ठीक है? तो इसलिए ऑल लिखना सही नहीं होगा, ठीक है? तो हमें कहने को मैंने बोल दिया कि हम सारी असेट्स ले लेंगे, विल टेक ऑल द असेट्स एक्सेप्ट अ फ्यू वन, राइट? व्हाट आर दोज केसेस, एक्सेप्शनल केसेस क्या है, आई टेल यू। तो हमने असेट्स ले ली हैं, डेटर्स ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, हमने बिल्डिंग ले लिया है, ठीक है? हमने और क्या ले सकते हैं, स्टॉक ले लिया है, राइट, BR ले लिया है, मीन्स वॉट एवर द असेट्स आर गिवन in the balance sheet you will take that except what, except P&L's debit balance। आपको पता है कि असेट्स में हमारी फिक्टिशियस असेट्स भी आती हैं, ठीक है? तो कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, P&L का डेबिट बैलेंस नहीं लेना है, राइट? एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कोई दे रखे हैं वो भी हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज दीज आर वैल्यूलेस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है? और ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टेक्निकली इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विच यू हैव टू राइट ऑफ इन द असेट साइड, तो ये भी आप नहीं लेंगे, ठीक है? लेकिन गुडविल को आप लेंगे। अगर आपको असेट्स में गुडविल दे रखी है तो यू टेक द गुडविल है, तो गुडविल को भी आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप असेट्स का सारा ले लेंगे यहाँ पे, ओके? एंड यहाँ पे आप लाइबिलिटीज को ले लेंगे। फिर मैं कहूंगी ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट अ फ्यू वन, राइट? तो कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज को हम लेते हैं? विल टेक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, राइट, बाय लोन, आउटसाइडर्स लोन, ठीक है? बिल्स पेएबल आ जाएगा, एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट? ये आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये यहाँ पे आ जाएंगी। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? अब लाइबिलिटी में तो कैपिटल भी आती है, ठीक है? कैपिटल आती है, यहाँ लिख लेती हूं मैं, कैपिटल आती है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आता है, राइट? वी हैव रिजर्व्स, सो मेनी गुल्लक्स आर देयर, रिजर्व आता है आपका, ठीक है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता है, उसका क्या करेंगे दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है? अभी स्टार्टिंग में हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जो भी टेक्निकल चीजें होंगी धीरे धीरे बारी बारी हम सीखेंगे, ठीक है? सो वी हैव वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑल्सो, वो भी हम किस तरह से लेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन के थ्रू, ओके? तो हमें क्या क्या नहीं लेना है, हमें कैपिटल नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? बिकॉज वी विल बी प्रिपेयरिंग सेपरेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल का बैलेंस वहां पे जाएगा, ठीक है? और आपको पता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको ये नॉलेज आ गई होगी कि P&L का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट है, हम वहां पे उसको राइट ऑफ करते हैं, रिजर्व्स वगैरह वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, व्हाट इज द स्पेशल है? हमने कहा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी लोन जो है, तो यहाँ पे हम पार्टनर का लोन नहीं लेते। अब इन क्वेश्चंस में डिसोल्यूशन के चैप्टर में आप देखेंगे पार्टनर का लोन या वाइफ्स लोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीजें आपको मिलेंगी क्वेश्चन में, ठीक है? तो हमें वाइफ का लोन तो लेना है क्योंकि वाइफ इज नॉट अ पार्टनर, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएगी, ठीक है? तो वाइफ का लोन हम लेंगे। सपोज इसी को मैं कर देती हूँ
वाइफ्स लोन, तो वो हम ले लेंगे यहाँ पे एंड उसको फिर पे करेंगे, ठीक है। लेकिन हम पार्टनर का लोन नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टनर का जो लोन है सेपरेटली वी हैव टू मेक दैट्स अकाउंट, राइट। लोन बाय फर्म टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर टू फर्म, तो ये दोनों अकाउंट क्या है हम सही टाइम पे सीखेंगे एंड ये सेपरेटली हमको बनाने हैं। तो यहाँ पे पार्टनर का लोन नहीं आएगा, राइट। होप इट इज क्लियर। So let me tell you in brief once again कि you take the assets here, you take the liabilities here, ठीक है। छोटे बच्चों की तरह हमें चीटिंग कर लेनी है, क्वेश्चन उठाना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से यहाँ पे हमने असेट्स को नोट डाउन कर लेना है, यहाँ पे लाइबिलिटीज को कर लेना है। ध्यान क्या रखना है, जो एक्सेप्शंस हैं उनको हमें नहीं लेना है, जो चीजें बताई है नहीं लेनी वो हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, एंड लाइबिलिटीज में से भी कुछ चीजें जो हमें नहीं लेनी है वो हम नहीं लेंगे। ओके, होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद कैन यू गिव मी सम एक्सप्रेशन इफ यू आर विद मी एंड यू आर गेटिंग, समझ आ रहा है? यस प्लीज, आर यू देयर? चंचल एंड कंपनी। ओके, सो नाउ वी जस्ट यूज द मेथड क्रॉस, ठीक है। आपको क्रॉस नहीं लगाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ जो लाइबिलिटीज हैं इनको हम यहाँ पे कर देंगे और ये जो असेट्स हैं इनको हम यहाँ पे रियलाइज करेंगे। ओके, किस तरह से करना है, मान लीजिए हमें क्रेडिटर को पे करना है, तो यू विल गेट द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन भी लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से हमें रियलाइजेशन बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो 20,000 दे रखा है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि हाउ मच वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर को हम कितना देंगे। क्वेश्चन में सपोज कहा है कि 15,000 आप क्रेडिटर को पे कर दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू कैश, कैश या बैंक, राइट। तो यहाँ पे हमने 15,000 क्रेडिटर को पे कर दिया है, ठीक है। फिर आपको कहा जाएगा बिल्स पेएबल मान लीजिए 5,000 का है, ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बताऊंगी। और वाइफ का लोन है, वाइफ का लोन 10,000 का है। अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि वाइफ का लोन पे कर दो, तो टू कैश या बैंक करके हम वाइफ का लोन 10,000 पे कर देंगे। अगर वो कहते हैं, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में कि मिसेज ए इज द पार्टनर, तो ये मिसेज एज लोन है, तो मिसेज ए का लोन आप कैसे पे करेंगे। क्वेश्चन देगा आपको कि मिस्टर ए हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे हिज वाइफ्स लोन, कि ए अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। तो वो क्यों पे करेगा भाई, फ्री में क्यों पे करेगा, ये तो फर्म ने लिया था ना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभी उसको पे कर देगा, बट दैट ही विल बी कंपनसेटेड बाय द फर्म इन हिज कैपिटल अकाउंट, यानी फर्म से उसको पैसा मिल जाएगा और वो पैसा वो अपनी वाइफ को दे रहा है। थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है बिजनेस के लिए, ठीक है, कि आप किसी क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके नेबर हैं, आपके साइड में ही रहते हैं, तो आपने कहा ठीक है, तो क्रेडिटर के लिए क्यों परेशान होना है, मेरे साइड वाले घर में रहता है, मैं पे कर दूंगा, ठीक है, एक पार्टनर ने बोला, तो वो पे कर देगा क्रेडिटर को, ठीक है, लेकिन उसको ये पैसा जो उसने क्रेडिटर के लिए पे किया है फर्म से मिलेगा, अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम मेंशन करेंगे। तो अगर यहाँ पे कहता है कि मिसेस ए का लोन मिस्टर ए के द्वारा पे कर दिया गया है, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि कोई लायबिलिटी पे की जा रही है किसी पार्टनर के द्वारा, राइट, तो वो अपनी पॉकेट से नहीं पे करेगा, फर्म से लेगा, तो उसकी कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे है बीपी 5,000 का, अगर कहते हैं कि ये पे कर दिया तो टू कैश करके बीपी आ जाएगा 5,000। अगर कहते हैं कि मिस्टर बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बीपी पे करने की, तो क्या आ जाएगा, टू बीज कैपिटल आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा बिल्स पेएबल, राइट, ओके। तो वी हैव टू टेक केयर। अब यहाँ पे लायबिलिटी का हो गया पेमेंट। अब और क्या चीज ध्यान रखनी है, मान लीजिए ये बीपी के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया था, पे कर देंगे तो टू कैश या बैंक हो जाएगा, राइट। कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो
बाय टू बीज कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए क्वेश्चन में वो बीपी को पेमेंट करने के लिए ही नहीं बोलता, या किसी और लायबिलिटी की पेमेंट के लिए क्वेश्चन बोलता ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं करता, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। आर यू गेटिंग? मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, कुछ नहीं बोला है, तो ऐसे में आपको ऑटोमेटिकली वो पे कर देना है अपने आप से। ठीक है, तो सम टाइम योर एग्जामिनर दे जजेस यू, है ना, आपको चेक करते हैं कि कितनी नॉलेज है, तो आपको लायबिलिटी दी जाएगी असेट्स में, सॉरी आई एम सॉरी, लायबिलिटी में आपको दी जाएगी बैलेंस शीट में, लेकिन पेमेंट करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे थे 2000, तो आप क्या करेंगे, टू कैश या बैंक करके इसको 2000 पे कर देंगे। ये कैश या बैंक दोनों क्यों बोल रही हूँ मैं, आगे चल के समझाऊंगी कि हमें कैश लेना है या बैंक लेना है। एक ही क्लास में सारी चीजें बताने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वी विल बी मूविंग। टुडे आई एम गिविंग यू एन आइडिया हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, okay, and tomorrow we'll take its practical from the book, so more clarity will be there. ठीक है, so here we have paid off the liabilities, जो कैश में बोलेगा वो कैश में पे कर देंगे, पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उनकी कैपिटल से हो जाएगा, और नहीं बोलता है पे करने के लिए तो कंपल्सरीली यू हैव टू पे। इज दैट क्लियर अबाउट द लायबिलिटी? ठीक है, अब बात करते हैं असेट साइड की, तो वही रूल है। अब ये तो हम पे कर रहे हैं, तो हमने टू कैश कर दिया, इसकी एंट्री समझ आ रही होगी आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, राइट, टू बीज कैपिटल, तो ये पेमेंट की एंट्री है। दैट्स वेरी सिंपल, कैश क्रेडिट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा तो कैश डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ जा रहा है पेमेंट के टाइम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, यानी पैसा जा रहा है। ठीक है, अब पैसा आएगा, कहाँ से आएगा? नाउ वी विल सेल दीज असेट्स, अब इन सारी असेट्स को हम बेचने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कोई असेट्स बेच रहे हो, यस, असेट्स बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है? मान लीजिए मैंने फर्नीचर बेचा है, यहां से हटके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूं, मैंने फर्नीचर बेचा है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर बेचेंगे तो पैसा आएगा, ओके, सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और गया क्या है? फर्नीचर गया है, 5000 का बेचा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर यहां नहीं हो रहा है, यहां क्या है? रियलाइजेशन है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। जस्ट हैव अ लुक, मैं डेटर्स को पे कर रही हूं, डेटर्स मान लीजिए आपके दे रखे थे 7000 के। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना आपको रिवैल्यूएशन की तरह कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बहुत मजे का चैप्टर है ये, आपकी बहुत सारी इसमें एनर्जी बच जाती है अगर आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो। डेटर्स 7000 के हैं, तो ये 7000 भी पे किए जा सकते हैं, वो ये भी कह सकता है कि 5000 पे करो, जो भी अमाउंट देगा वो आपको पे करना है। सो ही सेड कि 5000 पे करना है डेटर्स को, सो बाय बैंक या कैश, सॉरी पे नहीं करना, रिसीव किया हमने, है ना, डेटर्स से हमें रिसीव होगा, तो 5000 मुझे डेटर्स से मिल गए। तो इसमें क्या एंट्री बनी आपकी? देखिए, ये क्रेडिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, राइट, तो डेबिट क्या होगा? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे ब्रैकेट में आप मेंशन करते हैं कि क्या चीज आपकी बेची जा रही है, किस चीज से ये पैसा रियलाइज हो रहा है आपको। ठीक है, नाउ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन ऑफ 50,000 एंड बिल्डिंग इज ऑफ 30,000 सपोज, ओके, ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको। तो प्लांट एंड मशीनरी आपने 50 की दे रखी है, वो 40 में आपने बेची है, राइट, तो 40,000 में आपने सेल की है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट
बेचा है क्या? प्लांट एंड मशीनरी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी? नो, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुकी हूं। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज 40,000। ठीक है। एंड बिल्डिंग है आपकी 30,000 की, वो कहता है कि 70,000 में आपने ये बिल्डिंग बेची है, 70,000 रियलाइज हुआ है। तो बाय बैंक करके आ गया 70,000। ऑल्दो फायदा हो रहा है तो आपको कोई ज्यादा माइंड नहीं लगाना, फायदा नुकसान जो भी है आपको सिर्फ अमाउंट लिखना है। अब ये भी कह सकता है, लेट्स लर्न दैट, कि जो बिल्डिंग है, मिस्टर सी वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू टेक दिस बिल्डिंग, है ना। उसने कहा कि यार मेरे काम आ जाएगी ये बिल्डिंग, मैं ले लेता हूँ ये। तो हमने कहा ले लो, अच्छी बात है, हमें बाहर से किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लेंगे। ठीक है। तो क्या ट्रांजेक्शन करेंगे? बाय सीज कैपिटल। चाहे तो कोई पार्टनर लायबिलिटी को ले रहा है पे करने के लिए, या असेट्स को ले रहा है, उनकी कैपिटल लिखेंगे जिसने भी ली है। सी ने ली है तो सीज कैपिटल, बी ने है तो बीज कैपिटल, ए ने ली है तो एज कैपिटल। अमाउंट इज 70,000। ठीक है। ओके, ऑल राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि भाई आपने बेचा है इसे तो कैश या बैंक आ जाएगा, एज द कंडीशन विल बी द। और अगर किसी पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर की कैपिटल से हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू, प्लीज बी अटेंटिव। कि अगर जैसे लायबिलिटी में वो नहीं मेंशन करता था कि भाई बीपी के लिए कुछ नहीं दिया है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं दिया है, तो क्या रूल था कि वी वर पेइंग, कंपल्सरीली वी हैव टू पे दैट अमाउंट, राइट। वो हमने पे कर देना है। अब मान लो असेट्स के लिए नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे जैसे गुडविल दे दिया है, ओके, गुडविल दे दिया है, बीआर दे दिया है। तो बीआर था मान लीजिए आपका 2000 का, ओके, एंड गुडविल है, या गुडविल को के बदले में पेटेंट लिख देती हूँ, पेटेंट्स। ठीक है। पेटेंट इज ऑफ 20,000। तो अगर वो बीआर के लिए कुछ नहीं कहता है तो आपको कंपल्सरी पे करना है। बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं कहता है तो कंपल्सरीली आपको पे करना है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? लेकिन अगर पेटेंट के लिए कुछ नहीं कहता है तो वो आपको पे नहीं करना है। What is the difference? The difference is कि you have to identify either this is tangible assets or intangible assets. Hope you know the difference कि tangible assets are those one which we can see and touch, and intangible assets are those one which we can't see and touch. जैसे कि आपका पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, इन असेट्स को आप देख नहीं सकते हैं, you can feel only, okay? That enhances your reputation, that increases the goodwill and reputation of your business. Fine. तो अगर intangible assets है, आपने यहाँ पे बैलेंस शीट से आपने यहाँ रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उससे क्या रियलाइज हुआ वो मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो आप उससे कोई पैसा रियलाइज नहीं करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज जीरो वैल्यू, ओके। बट अगर वो टेंजिबल असेट्स है, यानी डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, स्टॉक है, इस तरह की असेट्स हैं, आपकी फर्नीचर है, ओके, और उसके बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में नहीं बताता कि बेच के कितना रियलाइज हुआ, तो आपको जो वैल्यू यहाँ दे रखी है सीधा सीधा वो आप बेच के रियलाइज कर लेंगे। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। तो इस तरह से आप ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं कि अब ये हो गया हमारा, जो क्वेश्चन में दिया है वो सारा आपने, जो असेट्स और लायबिलिटी में दिया था वो आपने नोट डाउन कर लिया, उनका उनका बेचना एंड पेमेंट करना, ये सब आपने कर लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कुछ लायबिलिटी थी जो अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर देयर, ओके, कि भाई पता नहीं कहाँ से मिस्टर रामलाल चले आ रहे हैं, कहते हैं मेरा भी पैसा देना। आई सेड कौन सा पैसा, बुक्स में तो है नहीं। उसने दिखाया कि देखो आपने तब लिया था और अभी तक पे नहीं किया। आई रियलाइज या ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आपको देना पड़ेगा। या कोई और किसी तरह की लायबिलिटी अचानक से आ जाती है जो कि यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन, सिंपल पे कर दो उनको।
कैश या बैंक करके उसकी पेमेंट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आगे चल के लेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो एक दिन पूरा लगेगा, अच्छे से सीखेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नॉर्मल वे में आपको पे करना है तो टू कैश या बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से जो भी पेमेंट है वो सारा आ जाएगा, एक्सपेंसेस पे करना इधर आ जाएगा। ठीक है, अब असेट्स की तरफ एक और चीज हो सकती है विच इज नॉट रिकॉर्डेड हेयर। ये हमारा रिवैल्यूएशन में भी हुआ करता था कि अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स है तो फायदा है क्रेडिट में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है तो लॉस था, वो डेबिट में आता था। तो यहाँ अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं है और आपको पता लगा रे वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वाह वो तो हमने देखा ही नहीं, और उस कंप्यूटर की वैल्यू 5,000 हो रही है, तो आपने कहा वाह ये तो मजे आ गए, पार्टी हो गई। 5,000 का कंप्यूटर रिकॉर्डेड नहीं था, बट यहाँ वैसे तो पार्टी होगी नहीं, है ना। तो ये आपको पैसा उसका रियलाइज हो रहा है, आपने बेच दिया, आपने बेच दिया मार्केट में, तो क्या बाय बैंक या कैश करके 5,000 आपको रियलाइज हो गया। या मिस्टर ए कहते हैं कि अच्छा ये कंप्यूटर वाओ आई नीड इट, मेरे घर में काम आ जाएगा बच्चों के, तो मैं ले लेता हूँ ये कंप्यूटर। रेस्ट ऑफ द पार्टनर से ओके, बट फ्री में तो नहीं लेंगे आप, है ना, हम देंगे ही नहीं फ्री में तो आपको। तो क्या करेंगे, बी ने लिया है तो बीज कैपिटल करके आ जाएगा, ए ने लिया है तो एज कैपिटल आ जाएगा, सी ने लिया है तो सीज कैपिटल आ जाएगा। इस तरह से कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो यहाँ पे पैसा रियलाइज कर लेंगे बेच के, और बेचा नहीं है पार्टनर ने लिया है तो उसकी कैपिटल से हम चार्ज कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कैपिटल डेबिट हो रहा है ना, जब कैपिटल से काटेंगे वो पैसा तो कैपिटल डेबिट होगी। होप यू नो दैट कि कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कर लिया, एंड फाइनली यू डू द बैलेंस, ओके, एज यूजुअल वी डू इन ऑल द अकाउंट्स। जैसे हम बैलेंस करते हैं हम करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट का सेपरेटली आप बैलेंस करेंगे, रफ में लिखेंगे, जो ज्यादा होगा वो आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं टोटल नहीं कर रही हूँ, दीज आर द रफ वर्क। सपोज क्रेडिट साइड का आपका टोटल 50,000 आता है एंड डेबिट साइड का आपका 30,000 आता है, सपोज, राइट। सो विच वन इज विच इज द बिगर फिगर? तो 50,000 इज द बिगर वन, तो आई हैव टू राइट 50,000 एट बोथ द साइड्स, एंड 30,000 इसका टोटल है, तो आपका बैलेंस कितना आया? 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा? ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पे न्यू ओल्ड का कोई चक्कर नहीं है ना। सो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 1:1 ओनली, है ना। यहाँ पे न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही रेशो है जो भी पार्टनर्स का था, इक्वली था, 3:1, वट एवर इज गिवन ऑन अ क्वेश्चन। सो यू जस्ट डिवाइड दिस प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। और अगर इधर का टोटल ज्यादा है इधर का कम है, सो द डिफरेंस विल कम हेयर, और इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये लॉस है, ये कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एक बार में पूरा समझ आ गया होगा, इट्स योर फर्स्ट टाइम टू डू, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन लूंगी रियलाइजेशन का, तो उससे और ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड जितना भी ये पढ़ा है एक बार आप प्रैक्टिस करें, बिना खुद से पढ़े कुछ नहीं आता। आप चाहे 10 जगह पढ़ लो, लेकिन आप खुद टाइम नहीं लगाओगे तो आपको नहीं आएगा, राइट। तो वॉट एवर यू हैव लिसन, जस्ट ओपन योर बुक एंड गो थ्रू दैट. Okay, thank you so much for joining me here. That's all in today's class. See you tomorrow. Thank you so much.